البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پروردگار عالم ماہ صیام کی عظمت مسلسل قرآن مجید میں کئی مقام پر اس نے بندوں کو متوجہ کیا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جو خیر من شہر، سارے مہینوں سے جو افضل ہے وہی ماہ صیام ہے، یہی رمضان کا مہینہ. مسلسل شروع کے خطبات میں یہ بات پوری دنیا میں اللہ کے بندوں تک پہنچائی جاتی ہے، یہ پیغام کہ دیکھو سارے مہینوں کی عظمت ایک طرف اور رمضان مہینے کی عظمت ایک طرف. اس مہینے میں جو خوش نصیب ہے وہ بہت کچھ پا جاتا ہے، اور جو بد نصیب ہے وہ ہمیشہ کے ذریعے سویا اور غائب رہتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو انسان کو متوجہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ دنیا کی ساری آرائش، دنیا کی ساری دولت، دنیا کا سارا علم، دنیا کی ساری دولت ایک طرف، عبادت پروردگار ایک طرف، بندگی یہ پروردگار ایک طرف. اگر دولت ہے اور اللہ کی بندگی نہیں ہے تو فرعون سے بدتر زندگی ہے. اگر حکومت ہے اور اللہ کا سجدہ نہیں ہے تو پھر یزید سے بدتر تمہاری زندگی ہے. اگر علم ہے اور اللہ کی عبادت اور اللہ کا سجدہ نہیں ہے تو پھر شیطان سے بدتر تمہاری زندگی ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو انسان کو انسان بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو انسان کے وجود کا زکات نکالتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو انسان کے نفس کو بھی پاک کرتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو انسان کی فکر کو پاک کرتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو انسان کے تصورات، خیالات، نظریات سب کچھ پاک کرتا ہے. اس پاک مہینے کا نام رمضان المبارک. آخری الوداع جمعہ ہے کیونکہ اس کے بعد ایک مختصر سی مجلس ہے، لہٰذا خطبہ بھی بہت طویل نہیں دینا ہے، لیکن چند باتوں کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے خطبہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کہ اس مہینے کی عظمت آپ دیکھیے، پروردگار عالم نے خیر من الف شہر قرآن مجید سے لے کے، اور وہ جو رمضان کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء. اتنی تعریف کی ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے اس دعا میں ماہ صیام کی. اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ ہم اس مہینے کی بے شمار عظمتیں بیان کریں، کیونکہ اب 2 دن وقت بچا ہے. کل اور پرسوں کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو سال بھر میں 2 ہی دن مسجد میں نظر آتے ہیں. یا الوداع جمعہ میں انہیں اللہ یاد آتا ہے یا بقرعید میں اللہ یاد آتا ہے. کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ یہ آنکھ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں دی ہے. یہ زبان تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں دی ہے. یہ قوت گواہی تمہیں اللہ کے علاوہ کسی نے اور نے نہیں دی ہے. یہ ہاتھ اور پاؤں میں طاقت، یہ شعور، یہ خیال، یہ احساس، یہ سب کچھ خالق حقیقی پروردگار عالم نے کیا. کیا تم اتنے کم طرف ہو کہ اس کا سجدہ یاد نہیں آتا؟ سال بھر اگر غافل ہو، سال بھر سو رہے ہو تو رمضان اسی لیے آتا ہے کہ تمہارے ضمیر کو بیدار کر دیا جائے، تمہاری فکر کو بیدار کر دیا جائے، تمہارے شعور کو بیدار کر دیا جائے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کہ دنیا کا سب سے بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان میں اللہ کو راضی نہ کر سکے اور اس سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے. کیوں؟ امام فرماتے اس کی وجہ ہے کہ اللہ کسی مہینے میں
मग़फ़िरत के दरवाज़ों को नहीं खोलता है। अगर दरवाजे खोलता है तो माह रमज़ान में खोलता है, माह सियाम में खोलता है। इमाम ने फरमाया ये वो अजीम महीना है कि जहाँ जहन्नम के दरवाजे परवरदिगार बंद कर देता है, रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है और फिर बंदों को बुलाता है, आओ, ऐसा ना हो कि महशर के दिन तुम मायूस हमारे यहाँ से लौट जाओ, आओ हम तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दिया है, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोल दिया है। लिहाजा वो हज़रात जिनके लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, काबिले मुबारकबाद है ये नमाजी, काबिले मुबारकबाद है ये सौम और सलात वाले, जिन्हें फरिश्ते भी सलाम करते हैं, मलाइका भी सलाम करते हैं, जिन्होंने मस्जिदों को रौनक बख्शी, जिन्होंने माह सियाम की अज़मत को समझते हुए उसके शऊर को जिंदा रखा। इसलिए यही वो महीना है जो परवरदिगार को राज़ी किया जाता है। लेकिन वो हज़रात जो इस महीने में भी गाफिल रहे, जिन्हें एहसास नहीं हुआ ये महीना कुरान की तिलावत का महीना है, जहाँ परवरदिगार बंदों को कितने अजीम सवाब से नवाज रहा है, जहाँ हमारा और आपका आखिरी नबी हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस महीने की अज़मत को इस तरह से बयान फरमा रहे हैं कि अनफासुकुम फीहे तस्बीह व नौमुकुम फीहे इबादत। इस महीने की अज़मत इतनी है कि तुम्हारी एक एक सांस को अल्लाह तस्बीह का दर्जा दे रहा है और तुम्हारे सोने को परवरदिगार आलम इबादत करार दे रहा है। जिस महीने में सांस का लेना तस्बीह है, सोना इबादत है, उस महीने की अज़मत क्या होगी। लिहाजा वो हज़रात इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और अल्लाह से दुआ मांगे आज अलविदाई जुमे में कि परवरदिगार इस साल जो हुआ वो हुआ, अगले साल के लिए मुझे हयात भी दे और मुझे तौफीक भी दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेरी बारगाह में तेरा सजदा करके, तेरी इबादत करके दुनिया में भी सुरखरू हो जाएं और आखिरत में भी सुरखरू हो जाएं। ये दुआ का वक्त है उन गाफिल अफराद के लिए जिन्हें पता ही नहीं है कि सारे महीने जैसे उनके लिए गुजरते हैं वैसे ही रमजान का महीना भी उनके लिए होता है। उनका रूटीन नहीं, जिन्होंने रोजा नहीं रखा वो दुआ करें, जिन्होंने उज़्र शरई के तौर पे नहीं रखा वो भी सेहत के लिए दुआ करें कि परवरदिगार इस साल हम बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सके, मैं परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ मांगता हूँ इस अलविदाई जुमे में। ये आज के दिन की दुआ रद्द होने वाली नहीं है। परवरदिगार दुआ मांगता हूँ कि मुझे इस लायक बना दे कि मैं तेरा रोजा रख सकूं, मुझे सेहत दे दे कि मैं तेरा रोजा रख सकूं। इसलिए इससे अजीम इबादत कायनात में कोई नहीं। और ये सारी चीजें अल्लाह को कब अच्छी लगती हैं, ये नमाज कब अच्छी लगती है, ये रोजा कब अच्छा लगता है, ये तस्बीह कब अच्छी लगती है, ये सजदा कब अच्छा लगता है, जब दिल में इश्क़ अहले बैत हो, दिल में हुब्ब अहले बैत हो, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। इस महीने के अंदर परवरदिगार आलम माह रमजान को किसी ने सवाल किया माह रमजान की अज़मत क्यों इतनी ज्यादा है। जवाब मिला इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। देखो इसी महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। आप तवज्जो फरमाएं, इस महीने की अज़मत को समझते हुए खुतबा आगे बढ़ रहा, लेकिन तवज्जो का तालिब हो कि जिस महीने में कुरान नाजिल हो जाए वो महीना अफजल, वाह, जिस रात में कुरान नाजिल हो जाए वो रात अफजल। आप गौर फरमाइए, और सारी दुनिया की किताबों से किताबे खुदा अफजल। सारी किताबें एक तरफ, कुरान मजीद एक तरफ, ये किताबे खुदा है ज़्यादा इधर। तो किताब जितनी अफजल है, अल्लाह ने इस अज़मत को बचाने के लिए जिस महीने में नाजिल किया उस महीने को सबसे अफजल बनाया। जिस रात नाजिल किया उस रात को तमाम रातों से अफजल करार दिया, और जिस नबी के दिल पे नाजिल किया उसको तमाम नबियों से अफजल करार दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह सियाम की अज़मत, माह रमज़ान की, जहाँ मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन जिसमें जितना ज़ौदा हो इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। ये 2 दिन हैं बचे हुए,
बस यही आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात अभी भी वक्त है कि जिन लोगों ने अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार नहीं किया है, जिन लोगों ने अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं किया है, जिन लोगों ने अपने को अल्लाह से करीब नहीं किया है, ये 2 दिन और बचे हैं। आ जाइए अल्लाह की बारगाह में। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये इबादत रस्म नहीं है, ये मस्जिदें रस्म नहीं है, ये नमाज रस्म नहीं है। ये एक मौका मिलता है परवरदिगार आपको अगर ज़िंदगी देकर इस अलविदाई जुमे में नमाज पढ़ने की तौफीक देकर भेज रहा है तो पहले उसका 70 शुक्र अदा करिए कि परवरदिगार यूं तो दुनिया में बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे अहले बैत की मोहब्बत का भरम भरने वाले हैं, लेकिन तूने मुझे चुना कि तू जा और नमाज़े जुमा पढ़ के आ। ये तेरी तौफीक थी जो मैं नमाज़े जुमा पढ़ने आया हूँ। तो परवरदिगार अगर तेरे इशारे पर, तेरी तौफीक पर इस इबादत में शरीक हुआ हूँ तो परवरदिगार इतना और करम कर दे कि इसी तरह हमें हर जुमे में जाने की तौफीक अता करे, इसी तरह हमें सच्चा इबादत गुज़ार बना दे। ऐसा नहीं है जुमा यहाँ कायम हुआ है, आप सभी हज़रात को मुतवज्जे रहना चाहिए कि हाँ धीरे धीरे तादाद मैंने सुना है कि बहुत कम हो रही है। पहले आप सभी हज़रात बड़े खुश व खर्रम और बड़े जोश व खरोश के साथ इस जुमे की नमाज में पाबंदी से तशरीफ़ लाते थे। मैं आप सभी हज़रात से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा अगर खिदमत में कोई अहले वतन से कमी हो, कोई शिकायत हो तो आप ज़रूर बयान करें, लेकिन इस इबादत की अज़मत को कम न करें। बेशक इस जुमे की अज़मत को कम न करें। वक्त रहे तशरीफ ले आइए, आइएगा सवाब दे के भी जाइएगा, सवाब ले के भी जाइएगा। इसलिए कि मुसाफिया करना भी एक सवाब है, सलाम व दुआ करना भी सवाब है। आप सलाम करिएगा, जवाब सलाम ले के जाइएगा। इबादत का मर्तबा बढ़ता जाएगा, जिंदगी का विकास बढ़ता जाएगा। जुमे की अजमत को समझिए। ऐसा नहीं है अलविदा जुमा माशाअल्लाह आप सभी नमाजियों को अल्लाह सलामत रखे, लेकिन हर जुमे की अहमियत को समझिए। ऐसा नहीं है कि ये जुमा बहुत अजीम है और आने वाला जुमा बिल्कुल हल्का है। अल्लाह की इबादत को, अली की विलायत को कभी हल्का न समझिएगा, वरना यहाँ भी रुसवा होइएगा और वहाँ भी रुसवा होइएगा। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। एक बात फितरे की है, बहुत तफसील में नहीं बयान करना है। हर साल जो रस्मन उलमा की जिम्मेदारी होती है कि वो फितरा ज़्यादा 3.5 किलो अनाज निकलता है और जो इंसान खाए वही निकाले, हुक्म है जो खाए रोज़मर्रा में वही निकाले। सारा मसला माशाअल्लाह पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, हर गांव में एक आलिम है, हर बस्ती में एक आलिम है। ज़्यादा ये बहुत संगीन मसला नहीं है, लेकिन चूँकि किसी आलिम दीन से एक बड़ी लतीफ़ बात है, किसी आलिम दीन से ने सवाल किया कि कहा देखो भाई सबसे भोली कौम जो है वो मुसलमान की है। मौलाना वो कैसे? सबसे भोली कौम, सीधी कौम मुसलमान कौम है, वो कैसे? कि इतने साल हो गए आज भी चांद रात फितरे का मसला पूछने के लिए फोन आता है। आपने गौर नहीं फरमाया, यानी इतनी भोली है कि 1400 साल से जिन्हें फितरे का मसला समझ में नहीं आया वो पूरा दीन क्या समझेंगे, वो पूरी शरीयत क्या समझेंगे। लेकिन एक बात हमारे और आपके पहले इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन जुमला और खुतबा अव्वल खत्म हो रहा है, इमाम फरमाते हैं बहुत तफसीली गुफ्तगू है, मार्फत है, क्या नहज है, क्या फसाहत है, क्या बलागत है। सारी बलागतें जहाँ दम तोड़ देती हैं वहाँ से मेरे मौला का कलाम शुरू होता है। और याद रखिएगा इमामुल कलामुल इमाम है, इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। क्या सुनना, अल्लाह अकबर। ये इमाम ने फरमाया कि पहली सूरत में अव्वल दीन मारिफतहु, दीन की पहली जो जिम्मेदारी, दीन का पहला तकाज़ा ये है कि उसकी मारिफत हासिल करो। अव्वल दीन मारिफत, दीन मारिफत के लिए, दीन अमल करने के लिए नहीं है, मारिफत के साथ अमल करने का हुक्म है। जितना दीन को पहचानिएगा उतनी ही आपकी मार्फत बढ़ती रहेगी। लिहाजा फितरा चांद रात अगर मेहमान आए आपके यहाँ क़याम करे, खाना खा के चला जाए, उसका फितरा नहीं है। जैसे बहुत से लोग मौलवी से घबराते हैं हफ्ता के दिन, मौलाना साहब ऐसा तो नहीं आपका फितरा देना होगा। क़याम आपके घर में जो करेगा उसका फितरा है।
آپ کے یہاں افطاری کر کے چلا جائے، آپ کے یہاں کھانا کھا کے جو شخص چلا جائے اس کا فطرہ آیت اللہ سستانی صاحب کے یہاں مسئلے میں نہیں ہے۔ جو مہمان آپ کے یہاں آئے، رات میں رکے، آپ کے یہاں نان و نفقہ لے، اس کا فطرہ والے۔ اگر صبح عید بچہ کو پیدا ہو جائے، چاند رات کسی کی ولادت ہو جائے، تو شریعت کہتی ہے ان کا بھی فطرہ نکالو۔ فطرہ نماز عید کے بعد نہیں نکالنا ہے، چاند رات ہی نکالنا واجب ہے۔ جتنا لیٹ کریے گا اتنا اس کا اجر آپ کو کم ملتا رہے گا، اور کوشش کریے کہ رات ہی میں مستحق تک پہنچا دیں۔ ہر عمل کا کرنا عبادت ہے، مگر اس کو منزل تک پہنچانا اس سے بڑی عبادت ہے۔ اس طرح خمس نکالنا واجب ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری خمس کا مستحقین تک پہنچانا۔ یہ نہیں کہ آپ نے نکال کے فلاں فنڈ کو دے دیا اور فلاں ادارے کو دے دیا اور فلاں کو دے دیا، جی ہم نے یہ حکم دیا وہ حکم۔ جس طرح سے یہ دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ قوم آج بھی لاچار و مجبور ہے، یہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو خمس نکالتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ ذمہ داری سے اس کو مستحقین تک خود پہنچائیں تو آج قوم اتنی لاچار نہ ہو، آج قوم اتنی بے بس نہ ہو، آج قوم اتنی غربت کی شکار نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اہل بیت نے نظام بنایا ہے، وہ معاشرے کی سدھار کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، انسانیت کی بلندی کے لیے، انسانوں کی عزت کے لیے، کہ اگر کوئی انسان غریب ہے، مجبور ہے، تو ان راستوں سے اس کی غربت کا بیڑا پار ہو، اس کی عزت کا بیڑا پار ہو۔ لہذا اس دن کو ذہن میں رکھیے گا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔